معزز خادمان، محترم بزرگان مجلس، صدر انجمن میر بزر، خداوند یسوع مسیح کے خوشگوار نام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اسمبلی آف بلیورز چرچ ان انڈیا مین آفس کی طرف سے آپ کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ میری عین خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ کے درمیان متکلم کی صورت سے خدا کا کلام لے کر آیا ہوں، اور بنی نوع انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خدائی نظام میں چھپا رہے۔ اور آج میں خداوند کے کلام کی ایک عبارت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں خدا کے کلام سے آپ سے بات کروں، میں شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر ڈیوڈ مسیح کی، جو باہر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ان کے پورے خاندان کی، کہ انہوں نے بہت ہی محبت سے ہمیں اپنے درمیان مدعو کیا اور مہمان نوازی کری۔ مہمان نوازی میں یوں تو لکھنؤ سب سے آگے ہے، لیکن ڈیوڈ بھائی نے لکھنؤ کا کچھ ملاحظہ ہمیں دے دیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کی محبت، اشتراک اور تعاون کے لیے، وزاداری اور ادب کے لیے، علم و تمدن کے لیے، کہ آپ نے ہم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور خصوصاً آپ کے اردو زبان کے لیے۔ ہمارے لکھنؤ میں کہتے ہیں اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے، اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ اور ہمیں خدا کا فضل دکھائی دیا، اور شکر کرنا لازم ہے کہ آپ نے مجھے اردو زبان بولنے کا موقع دیا، اور آپ کو اچھا بھی لگا۔ آج مجھ سے درخواست کی گئی ہے کہ کچھ اردو زبان میں، کچھ انگریزی زبان میں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو شاید اردو زبان نہیں جانتے ہیں، اور میں ہندی زبان سے کم واقف ہوں، پر اردو ہماری مادری زبان ہے، ہماری پیدائش رہائش اردو ادب میں ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں آسمان کا خدا کا شکر کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں اپنے تمام عزیزوں کا جنہوں نے ساتھ میں خدا کی خدمت کری، ہمارے سدھو صاحب، سسٹر رکسن، اور مختلف خادمان جو جگہ جیسے آ کر کے انہوں نے اس جلسے میں چار چاند لگائے۔ کاش کہ خدا آپ کو غیر فانی نعمتیں عطا کرے۔ آج ایک آیت پڑھیں گے اور وہاں سے آج کا مضمون ہم حاصل کریں گے، اور وہ ہے زبور 94 سام، زبور 94، اور اس کی ایک آیت ہم پڑھیں گے، اور یہاں سے آج کا مضمون حاصل کریں گے۔ زبور 94 اور اس کی 18ویں آیت، زبور 94 اس کی 18ویں آیت، اور یہاں لکھا ہے، جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے تھام لیا۔ جب میں نے کہا کہ میرا پاؤں پھسل چلا تو تیری شفقت نے مجھے تھام لیا۔ When I said my foot slipped, then, O Lord, your mercy upheld me۔ آج کا مضمون ہے کہ شفقت کا دروازہ اقرار سے کھلتا ہے۔ شفقت کا دروازہ اقرار سے کھلتا ہے۔ کئی لوگوں کو یہی پریشانی ہے کہ ان کے لیے شفقت کا دروازہ کیوں نہیں کھلا، کیونکہ آپ مٹھوس ہیں، اقرار نہیں کرتے۔ اقرار کریں گے تو شفقت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ خدا دروازہ کھولنے والا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 28 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو مان کر ان کو ترک کر لیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بربادی اور ناکامیابی کی وجہ اپنے گناہوں کو چھپانا ہے، گناہ کرنا نہیں۔ گناہ بربادی کی وجہ نہیں ہے، گناہ کو چھپانا بربادی کی وجہ ہے۔ اور شفقت کا دروازہ اقرار سے کھلتا ہے۔ ہاں، آج کا ہمارا مضمون ہے مان لینا، اقرار کرنا، احساس کرنا، توبہ کرنا، تسلیم کرنا اور انگیکار کرنا۔ جو بھی آپ سمجھ لیتے ہیں سمجھ جائیے، مان لیجیے اپنے لیے۔ کسی زبان میں بھی، سب زبانوں میں نے کہہ دیا، it is important for us to accept our faults۔ ہم اپنے خطاؤں کو مان لینا بہت ضروری ہے، اور آج ہم اس کی تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام میں آپ کو لے چلیں گے۔ شفقت کا دروازہ اقرار سے کھلتا ہے۔ نئے نامے میں یوحنا نے اپنے خط میں، مختلف خطوط میں سے ایک خط ہے جس میں سے اس نے لکھا ہے، یوحنا نے، اگرچہ ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا
اگر ہم کہیں تو کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم جھوٹے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اس کا مطلب گناہ تو سب نے کیا، لیکن لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کو مان لیں تو وہ ہمارے گناہوں سے معاف کرنے میں اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آسمان کا خدا زمین کے انسان کو معاف کرنا مانگتا ہے. If we say we haven't sinned, we deceive ourselves. You don't deceive anybody else. You don't deceive your wife. Don't think that you're deceiving your wife. Don't think you are deceiving your community, your pastor, or the people around you. But only one person that you're deceiving but not accepting your fault is yourself. And the person who deceives himself is not a very wise man in the sight of God, in the sight of men. And tonight I'm talking about accepting. اقرار کر لینے کے بارے میں، مان لینے کے بارے میں کہ ہاں ہم نے خطا کی ہے، ہماری غلطی ہے، تاکہ شفقت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے. کیا آپ دروازے کو بند دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا خدا آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ آپ کے بچے لٹ رہے ہیں، آپ کا مال آپ کی آنکھوں کے سامنے لٹ رہا ہے، ساری بربادی آپ کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے. اس کا سبب یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا، پر اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے شفقت کے دروازے کو کھلوانے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا. لیکن مان لینے سے دروازہ آج بھی کھل سکتا ہے. آپ کے حالات بدل جائیں گے. آپ کے اور آپ کی بیوی کے بیچ میں سمبند، آپ کا اور آپ کا پڑوسی سے، آپ کا اور آپ کے خدا سے، آپ کے بچوں سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے رشتہ اور ناتا بدل جائے گا. You want to change your situation, you want to change your surroundings, and you want God of heaven to open the door of heaven for you, and you want God's grace to shower upon you. It could be done, but only by accepting your fault that I am wrong. ضد کرنا، ہٹ کرنا، ٹھان لینا کہ ہم نہیں مانیں گے، بحث کرنا، دل سخت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، ان سے کچھ فائدہ نہیں. لیکن گناہوں کو مان لینے سے ہمارے لیے شفقت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ہم کچھ حوالے آپ کے درمیان پیش کریں گے، اور سب سے پہلا حوالہ جو ہم پیش کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک نبی کے گھر پر ایک کوڑھی آیا تھا اور اس کوڑھی کو اس نبی نے اچھا کر دیا تھا. نبی سے کوڑھی خوش ہو کر، جس کا نام نامان تھا، اور بہت سامان لے کر آیا تھا. لکھا ہوا ہے کہ 600 ٹکڑے سونا اور 10 قنطار چاندی اور 10 نفیس جوڑے کپڑے اور بادشاہ کی چٹھی لے کر آیا تھا. اور دور دراز ملک سے آیا تھا، رتھوں پہ چل کر کے آیا تھا اور اس کو انعام دینا چاہتا تھا. بادشاہ خدا کے خادم نے منع کر دیا کہ نعمان میں تیرے ہاتھ سے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں لوں گا، اور اس نے اس کو واپس کر دیا. جب وہ واپس جانے لگا تو لکھا ہے کہ اس کے نوکر نے کہا میرے آقا نے، میرے مالک نے تو اس کو یوں ہی جانے دیا، میں ضرور کچھ نہ کچھ اس سے لوں گا. اور اس کے پیچھے دوڑ گیا اور اس سے دوڑ کر جا کر کہنے لگا میرے آقا کے گھر میں، میرے مالک کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں اور اس کو کچھ چاندی چاہیے، کچھ سونا چاہیے، کچھ کپڑے چاہیے. اور اس نے کہا جتنا چاہتا لے لے، اور وہ لے کر کے آ گیا. اور اس نے کہا میں جا کر سب کچھ چھپا کر مالک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو مالک نے اس سے سوال کیا کہ تو کہاں گیا تھا؟ گہیزی تو کہاں گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں لکھا ہے کہ آقا نے کہا، اس کے مالک نے کہا کہ نامان کا کوڑ تجھ پر لگے اور تیری اولاد پر لگے، تجھ پر لگے، تیری اولاد پر. آج ہماری زندگی کو کوڑ اور ہماری اولاد کو کوڑ ستا رہا ہے. اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے خطا کی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نے چوری کی ہے، سونا اور چاندی لے آئے ہیں، اس کو چھپا دیا ہے، پر سبب یہ ہے کہ جب مالک نے کہا کہ تو کہاں گیا تھا تو اس نے کہا مالک میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا. اگر تو کہتا تھا مالک لالچ آ گئی، تم نے سونا چاندی چھوڑ دیا، ہمیں دیکھ کر بڑی لالچ آ گئی، ہم دوڑ گئے، اس کے بعد گئے، ہم نے کہا تھوڑا سونا دے دو. ہماری بیوی ہمیشہ سونے کا ذکر کرتی اور کہتی کہ ایسی تم نے سونے کے زیور ہمیں بنا کے نہیں دیے. ہم سوچنے لگے بنائیں گے، تھوڑا سا بچی کی شادی کے لیے بچا لیں گے، سب سوچ سوچ کے چلے گئے. ہم سوچنے لگے چاندی کے کنگن بنا لیں گے، اور ایک کپڑا بہت اچھا جو تیرے لیے لے کے کھڑا تھا، میں اس کا میں پہن لوں گا کرسمس پہ، اور میں نے جا کے اس سے لے لیا. خدا خالق کا دے گا پائندہ ایسی حرکت نہ کرنا، میں نے تجھے معاف کر دیا. جب خدا نامان کو معاف کر سکتا ہے تو گہیزی کو بھی معاف کر سکتا ہے. آپ پوچھیں گے پھر نامان کو کیسے معاف کیا؟ یہ تو جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے کہ نامان بادشاہ کی چٹھی لے کر کے بادشاہ کے پاس گیا. معلوم ہے نامان کے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو نامان کی بیوی کے اوپر کام کرتی تھی، اور اس نے سب کو بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر خدا کا ایک خادم ہے جو اپنا ہاتھ رکھ کے تجھے کوڑ سے آزاد کر سکتا ہے. اور خدا کا
का वो ऐसा खादिम है कि खुदा ने उसको सिफत दी है कि वो कोर्ट से उसको आजाद करेगा। नामान ने बादशाह से चिट्ठी बादशाह के नाम ली, वो उस बादशाह में आ गया जहां खुदा का ये खादिम है, और वो मर्द खुदा के दरवाजे पर आ गया। सोना और चांदी और कपड़े और सब कुछ मौजूद है, मर्द खुदा के दरवाजे पर भी आ गया, पर उसके कोर्ट से उसको शिफा नहीं मिली। हो सकता है आपके पास इतना दर्जा है और आप इतने रुतबेदार हैं कि चिट्ठी किसी से ले सकते हैं। चिट्ठी हम तो सेनेटर से चिट्ठी ले सकते हैं, हम तो गवर्नर से चिट्ठी ले सकते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से चिट्ठी ले सकते हैं। गुड, चिट्ठी ले लिया करिए, पर चिट्ठी में कोर्ट से शिफा नहीं है। चिट्ठी आपको कोर्ट से शिफा दे नहीं सकती। फिर कोर्ट से शिफा कौन सी चीज देगी? वही तो बताने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अगर आपके पास सोना और चांदी है, और इतना सोना और चांदी है जितना ये लाया था, जितना सोना चांदी ये लाया था, ये अरबों रुपए का सोना लाया था, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का सोना और अरबों रुपए का चांदी लाया था, और आकर के रथ पे खड़ा हो गया। हो सकता है यू आर केपेबल इनफ टू गो टू समबडीज हाउस इन द बेस्ट ऑफ योर कार, द कार दैट पीपल जनरली डोंट यूज, you use every now and then. Your house is the biggest house in the circle of your friendship. Maybe you are most educated man and you know big people of the society. King is very favorable on you and you are the captain of the army of Syria. You could be one of them. But that doesn't give you relief from your leprosy. What relieves you, what delivers you, what heals you from leprosy? He came to the house of God, house of man of God. दरवाजे पर खड़ा हुआ, मर्द खुदा बाहर भी नहीं निकला। मर्द खुदा ने कहा चला जा, यरदन में 7 गोते लगा ले तो तू अच्छा हो जाएगा। तब लिखा हुआ है, और तब लिखा है नामान नाराज हुआ। आज हम लोग सोना और चांदी और कपड़े और रथ और बादशाह की चिट्ठी सब लाने को तैयार हैं, लेकिन 7 गोते लगाने के लिए तैयार नहीं। नामान नाराज हुआ और लिखा, मुड़ करके कहने लगा बड़े तेज में कि क्या हमारे मुल्क में अबाना और फरफर नदियां मिस्र की सब नदियों से बेहतर नहीं है? क्या मैं उसमें नहा करके शिफा नहीं पा सकता हूँ? Many people who are qualified enough and have the letter from the king and also have approaches elsewhere, people who possess gold and silver, people who run everywhere on chariots and have people to help them and back them up, are the people who are not willing to obey, and they will never receive the healing from their leprosy. और नामान नाराज हुआ और मुड़कर बड़े तैश में चला गया। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं आप नामान की तरह तो नहीं है? आपके पास सब कुछ है, आप पादरी को खाना खिलाने के तैयार हैं, नया सूट बना करके देने के लिए तैयार हैं, और चर्च में पुलपिट इनाम देने के लिए तैयार हैं, पूरी कन्वेंशन का मुझसे ले लीजिए पैसा, खाना मैं कराऊंगा, आप चिंता क्यों करते? आप इंडिया जाइए, मैं टिकट दूंगा। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, होनी चाहिए, पर ये तौबा की जगह आप इसको नहीं दे सकते, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। Nothing in life could be substituted repentance. Repentance is repentance. Accepting your mistake is accepting your mistake. You go to the shopping center and buy the best clothing for your wife. That doesn't stand as repentance. Repentance is repentance. When you have to accept your fault, accept your fault. आप अपनी बीवी से कहते हैं, अरे तुझे कितनी चीजें दी हैं, पूरा बैंक खाली कर दिया मैंने, लाखों रुपए तेरे ऊपर खर्चा कर दिए। औरत कहती है तुमने खाली तो कर दिया, पर आज तक अपने दिल का राज मुझे नहीं बताया, गलती का एहसास नहीं किया। और कई औरतें अपने आदमी से कहती हैं, हम क्या नौकर बन जाएं, हमने क्या नहीं किया तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए। अरे बच्चे उसके भी हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों कहती, उसी से पूछेगा ना, मैं औरत हूं ना बता सकता हूं। तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए मैं कहती हूं मैंने सब कुछ किया है, और तुम और क्या चाहते हो? आदमी कहता ये नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम रात दिन लगे रहो मशीन की तरह, पर मैं चाहता हूं अपने दिल को खोलकर साफ साफ बातें मुझसे किए रहो, छिपा छिपा के नहीं। अगर बहन को पैसे भेजना है मुझसे बताओ। तुम क्यों बार बार पूछे कोई इंडिया जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई इंडिया क्या है? वो तोता मंगाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है तो तोते ही आदमी पूछ रहा, आज तक तो तूने तोते का जिक्र नहीं किया, आज तोता कहाँ से मंगाएगी? नहीं तू बता दे, बहन को पैसे भेजना है, बहन मेरी गरीब है, उसके बाद नहीं है, और आप छिपाए ना। कई दफा हम लोग ऐसी बातें छिपाए रहते हैं जो हमको कहनी है पर छिपा देते हैं, छिपाने से कोई फायदा नहीं। फजल का दरवाजा बंद रहेगा अगर चाहते आसमान के खुदा का फजल का दरवाजा, इफ यू वांट द डोर ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड ओपन्स फॉर यू, यू डू वन थिंग, Tell God, I'm slipping. I made a mistake. I shouldn't have said this thing. दोस्त से आपने गंदी बात कही, आप सोच रहे हैं दोस्त मेरा जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगा, मुझे छोड़ देगा, कोई बात
पत्नी फोन करके कहती है, दोस्त आई एम सॉरी, मुझसे ये बात नहीं होनी चाहिए थी, मैंने गलत कहा, मुझे नहीं करना चाहिए था. You said something wrong to your friend. Get the phone immediately and talk to the friend and say, friend, I'm sorry, I should not have said that, I am sorry, I apologize. और दरवाजा उस फ्रेंड का आपके लिए खुल जाएगा. वो आपको जितना पहले प्यार करता उससे ज्यादा प्यार करने लगेगा और आसमान के खुदा का दरवाजा भी आपके लिए खुल जाएगा. शफकत का दरवाजा इकरार से खुलता है. आज का शफकत का दरवाजा आपके लिए बंद है. आप कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार, मैं इतना पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, रात दिन लगाता हूँ, 3-3 नौकरियां करता हूँ, पर पता नहीं मेरा घर जहन्नम क्यों बना हुआ है. मेरी लड़की को देख लो, भूतनी जैसे मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है. मेरे लड़के को देख लो, बिल्कुल बर्बाद है. मेरी बीवी को देख लो, मैं तो किसी दिन जाकर के अपना सर दरबार में लड़ा लूंगा. आपकी शफकत का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? शायद आपने वो काम नहीं किया जिसका जिक्र मैं आज शाम कर रहा हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक किस्से में आपको ले चल रहा हूँ. यहाँ पर जिस आदमी ने दरवाजे पे आकर के शिफा नहीं पाई, उसके बारे में ऐसा लिखा है, घर जाकर पढ़ लीजिएगा. आज अगर सारी आयतें पढ़वाऊंगा तो मसीह साहब पीछे आके खड़े हो जाएंगे. वो हालात यहाँ बर्पा होना देना नहीं चाहता. मुझे समझ में नहीं आता कि काहे के रख रहे हैं, क्या कह रहे हैं. क्या ये कह रहे हैं और प्रीच करो या कह रहे हैं बैठ जाओ? सुनिएगा कि ये आदमी इसके बाद ये आदमी लिखा मुड़कर चला गया. तब उसके मुलाजिमों ने कहा नामान मर्द खुदा कौन सी बड़ी बात कहता है, तो यही कहता है कि नहा ले. जब वो कहता है यर्दन में नहा ले तो क्यों नहीं नहा लेता? और मर्द खुदा ने कोई जानबूझ करके कहा था. The man of God knowingly said go take 7 dips in the river Jordan, because the man of God knew this man has come with a pride heart. I am a great man, I am going to the man of God. Man of God is ordinary and we extraordinary people, rich people, people with a lot of money, people with a lot of education. When you come to the man of God, you come like this. इसकी एजुकेशन क्या है? बात देवर किया. मेरी एजुकेशन देखो, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कितनी गाड़ियां हैं, मेरा कितना बिजनेस है. But when you come to the man of God, you don't come to Pastor Masih, but you come to the man of God. When you come to the man of God, you come to God. जब आसमान के खुदा के खादिम के सामने आकर खड़े होते हैं तो आसमान के खुदा के सामने खड़े होते हैं और उसमें अपनी सब क्वालिफिकेशन को घर में लेके आइए. मैं अक्सर चर्च में कहा करता हूँ, don't come to the church for your degrees. Let your degrees be in your almirah, in your house. We don't need your degrees here and forget about what you are. Just bring the checkbooks. उसकी जरूरत होती है. देखिए भाई साहब, आपको नुकसान नहीं किया मैंने. कई दफा भाई साहब नाराज होते हैं, तुमने कह दिया चेक बुक ना लाओ, अगले दफा कोई नहीं लाएगा. जस्ट ब्रिंग योर चेक बुक, डोंट ब्रिंग योर सर्टिफिकेट. सुनिएगा क्या है ये मर्द खुदा ने छोटी सी बात कही है कि नहा ले, तो क्यों नहीं नहा लेगा? तो देखिए क्या लिखा, घर जाकर पड़ेगा. तब लिखा हुआ है और तब नामान ने रथ खड़ा करने का हुक्म दिया और रथ पर से उतरा. पहली दफा उतरा नामान रथ पर से उतरा. आज सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से नामान आज तक कोढ़ से पीड़ित हैं. हालांकि चिट्ठी उनके पास है बादशाह के लिए. हालांकि उनके पास 6000 टुकड़े सोना है, 10 किंताल चांदी है, 10 जोड़े कपड़े हैं. मर्द खुदा बहुत खुश हो सकता है. हालांकि रथ से मर्द खुदा के दरवाजे पर पहुंच गया, फिर भी कोढ़ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उनको रथ से उतरने की जरूरत है. कहाँ चढ़े हुए हैं? गुरूर से, घमंड से, ऊंची बातों से, चली हुई आंखों से. अब क्या समझता अपने आप को, मैं कोई से कम हूं, क्या मैं उसके आगे झुकूंगा? ये बातें फानी है और खराब है. इनसे शफकत का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा. आपका घर झगड़े में और आपके रिश्तेदारी ताबत के लिए खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. और आपके घर में हमेशा तमस्कुर और मजाहका आपका होता रहेगा. आप अपने घर को जहन्नम से ज्यादा गंदा समझेंगे, क्योंकि शफकत नहीं है. जब तक शफकत का दरवाजा आपके लिए खुलेगा नहीं, तब तक आप अपने घर को फिरदौस नहीं समझ सकेंगे. शफकत का दरवाजा इकरार से खुलता है. आज छोटा बच्चा बड़े बच्चे से, बड़ा बच्चा छोटा बच्चे से, भाई भाई से, बहन भाई से, अंकल आंटी एक दूसरे से, मियाँ बीवी से, कलीसिया के मेंबरान एक दूसरे से, एक गाने गाने वाला दूसरे गाने से, एक बाजा बजाने वाला दूसरा बाजा बजाने वाले से, चर्च में काम करने वाले एल्डर्स और डीकन्स आपस में एक दूसरे से अपनी कमजोरी का इकरार करें. भैया गलती हो गई थी, ये बात हमको नहीं कहनी चाहिए, आपको नहीं बुलाया. बर्थडे पार्टी में बजाय लंबी गोल गोल बातें करें, मैं सोचा आप हो ही नहीं, इसलिए मैंने कहा आप शायद इंडिया गए हो गए. झूठी बातें नहीं, आपको भैया पता नहीं क्यों दिमाग से तुम्हारा नाम निकल गया, इसलिए तुमको नहीं बुलाया. हमको बहुत मलाल है. वो आदमी मान जाएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. अपने दिल को खाली करो खुदा के सामने और दरवाजा खुल जाएगा. और जब दरवाजा खुल जाएगा, आसमान को खुला और आसमान के फरिश्तों को अपने घर में आता देख सकोगे. एक सीढ़ी है जो आसमान तक पहुंचती है और फरिश्ते उस सीढ़ी पर चढ़कर बता रहे हैं कि तुम सीढ़ी पर से चढ़कर आसमान पहुंच सकते हो. याकूब
याकूब ताज्जुब करने लगा और याकूब कहने लगा, जंगल में मैं इतना गुनहगार आदमी, इतना नालायक आदमी, मैंने अपने बाप को ठग लिया, मैंने अपने भाई से झूठ बोला और उसकी सब बरकत छीन ली और मैं जंगल में आया, रातों रात मुझे घर छोड़ना पड़ा, मुझको धक्के देकर घर से निकाल दिया गया, मैं सूटकेस भी नहीं पैक कर सका और मैं जंगल में बिल्कुल अकेला था और यहाँ पर मुझे मालूम नहीं था यहाँ खुदा है, बल्कि फरिश्ते चढ़कर सीढ़ी बता रहे हैं। तो याकूब ने कहा, फरिश्ते तो उड़ते हैं, फरिश्ते सीढ़ी पे से क्यों चढ़ रहे हैं? तो उससे मालूम पड़ा कि आसमान के खुदा के फरिश्ते याकूब को बता रहे हैं, याकूब हर चंद तू इतना गुनहगार तो जरूर है, लेकिन फिर भी तू सीढ़ी पर से चढ़ करके आसमान तक पहुंच सकता है। अगर आप में से कोई इतना गुनहगार इंसान है जिसने अपने बाप को ठगा है, अपने भाई को ठगा है, अपने खानदान को ठगा है और रास्ता पर ठगते ही रहे, गंदे गंदे काम किए हैं, आप जब अपनी सूरत को आईने में देखते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है, शर्म आती है अपने आप पर, तो आप आज भी इस जंगल में हैं। जिस तरह याकूब ने खुदा को और खुदा के तख्त को देखा और फरिश्तों को ऊपर चढ़ते देखा, आप भी देख सकते हैं और आपकी जिंदगी में खुदा उसी तरह से काम कर सकता है और आपको याकूब नहीं बल्कि इसराइल बना सकता है। आपकी खानदान बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके हालात बदल सकते हैं। शफकत का दरवाजा इक़रार से खुलता है। द डोर ऑफ ब्लेसिंग and door of mercy opens by our repentance. When I accepted Lord, I am slipping. Your mercy upheld me. तेरे जब मैंने इकरार किया कि मेरा पांव फिसल चला, तो तेरे फजल ने मुझको थाम लिया। मैं आपको उस जगह पर ले चलूंगा जहां पर आपको कहानी मालूम होगी कि बादशाह के बेटे की शादी हुई, कोई नहीं आया। बादशाह ने कहा, जाओ सड़कों पर से लोगों को ले आओ, जो मिल जाए उसे ले आओ। मालूम है कहानी, संडे स्कूल में पढ़ी होगी। बादशाह ने कहा, go and bring anybody. Nobody came to the feast of my son. I have prepared sumptuous meal and everything is all set. Nobody came. King said, go and bring anybody. Go to the highways and byways and bring anybody you can. And they brought everyone inside. तब लिखा है, बादशाह अपने मेहमानों को देखने के लिए आया। बादशाह अपने मेहमानों को देखने के लिए आया और जब बादशाह मेहमानों को देखने आया, देखा वहां एक शख्स था जो शादी की पोशाक पहने बगैर आ गया। बादशाह ने सबके लिए शादी की पोशाक बनाई थी, वहां पर एक शख्स है जो शादी की पोशाक पहने बगैर आ गया। तो ऐसा लिखा हुआ है कि बादशाह ने उससे पूछा, मियां, और उसके बाद लिखा है कि उसने मुलाजिमों से कहा, इसको उठा करके अंधेरे में फेंक दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। आप कहेंगे बादशाह इतना सख्त है, एक तो बुलाया दावत पर, गरीब आदमी को बुलाया हाईवेज और बाईवेज पर से, और फिर उसको उठा करके बाहर फिकवा दिया अंधेरे में। पर आपको एक बात मैंने नहीं बताई, छुपा ली, वो बताऊं। बादशाह ने उससे पूछा कि तू शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों आ गया? लिखा, मालूम क्या लिखा है? आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा। लिखा, उसका मुंह बंद रह गया। ये वक्त मुंह बंद रखने का नहीं था। कई लोग गिरजे भी आते हैं तो वैसे खड़े रहते हैं। बीबी लाई है, ये भी कह रही थी तुम मेरे साथ गिरजे चलोगे तो तुम्हारे साथ मूवी चलूंगी। बीबी कह रही थी कि तुम मुझको ले चलो, तुम मेरे साथ गिरजे चलोगे तो मैं तुम्हारी माँ के घर जाऊंगी। वैसे तो बड़ी खराब औरत, लेकिन जाऊंगी, तुम मेरे गिरजे जाओगे तब जाऊंगी, इसीलिए आकर खड़े हैं। अच्छी बात थोड़ी है, बातें बीच कर रहा है, ऐसे खड़े हैं। हाथ भी बांध लेते हैं, अगर बस चले तो चेन से बांध लें कि कहीं हाथ ऊपर न उठ जाए, ऐसे खड़े हुए हैं। पर लिखा है, जब बादशाह ने पूछा कि तू शादी के पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों आ गया, तो उसको सीधे से बादशाह बड़ा भूखा था, वहां पोशाक पट रही थी, बड़ी लंबी भीड़ लगी थी। मैं सोचने लगा मुझे नहीं मिलेगी पोशाक तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, तो बादशाह मैं खिड़की से कूद के अंदर आ गया हूँ, भूखा था बादशाह, भूख ले आई यहाँ पर। तो बादशाह चल चल जा वहां से कपड़ा ले ले। तो लिखा है उसका मुंह बंद कर, बादशाह से करेगा। ये बात से खुदा को सख्त नफरत है। जब खुदा के सामने आए तो अपना हलीम दिल कर लेके आए। टूटा हुआ दिल खुदा के सामने ग्रहण योग्य कुर्बानी है। टूटा दिल लेके आए, खुदा बाप गलती हो गई माफ कर दे, और गुनाह की माफी से, तौबा करने से जो अपने गुनाहों को मान लेता उस पर रहमत होगी, जो अपने गुनाहों को छिपाता वो कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपका अबद नाकामयाब रहे तो हेल्प योरसेल्फ।
कहीं कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप चाहते हैं आप कामयाब हो और आप चाहते हैं आसमान के खुदा का शफकत का दरवाजा आपके लिए खुल जाए और आसमान की शफकत आसमान से आए और आपके लिए फरिश्ते आसमान से उतरते और चढ़ते हों और सीढ़ी आपके घर से आसमान के खुदा तक लगे। खुदा लगा सकता है, पर सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। खुदा बाप मैंने कसूर किया, मैंने खता किया। जब लिखा है मत्ती की इंजील में कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा दे रहे थे, तब लिखा है जब उन्होंने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए आते देखा तो उनसे कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो। ये लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रहे थे, लेकिन तब लोग अपने गुनाहों का इकरार करके यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। यूहन्ना से बपतिस्मा अपने गुनाहों का इकरार करके ले रहे थे। तब लिखा है तब सदूकियों ने जब देखा कि लोग बपतिस्मा ले रहे हैं तो उन्होंने कहा यार हम भी तबाह हो जाएंगे। तबाह के बारे में बता रहा है कि खुदा का गजब आने वाला, बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। चलो यार अपना घर बचा ले, अपने को बचा ले। अपने खताओं का इकरार नहीं कर रहे हैं और अपना घर बचाना मांग रहे हैं। कई दफा हम अपनी कसूर को नहीं मानते हैं पर कहते हैं यार सुनो मान लो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर बीवी ने कुछ पता कर लिया तो बीवी से कहा मैम साहब ठीक है, क्यों अगर ये बात करी तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए नहीं बल्कि इसलिए मान लीजिए हाँ मैम साहब आई एम रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग, यस माय हस्बैंड आई वाज रॉन्ग, यस माय पापा आई वाज रॉन्ग, यस पादरी साहब आई वाज रॉन्ग। और जब आप इसलिए गुनाहों को मान लेंगे कि आप अपने गुनाहों को, लेकिन जो अपने गुनाहों को मानकर उनको छोड़ देता है, ये लिखा जिनको गुनाहों को मानकर उनको छोड़ देता उस पर रहमत होगी। आसमान का खुदा इस कलीसिया पर अपनी रहमत नाज़िल करना मांगता है। न सिर्फ कलीसिया पर दूर दूर और आसपास से और दूर दराज से आए हुए तमाम लोगों पर अपनी रहमत नाज़िल करना मांगता है। Heaven is going to be open for you. The door is going to be open for you and you will realize that the blessing of heaven are going to start coming to you. But only one thing, उसने जब उनको आते देखा तो कहा तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से भागो। मान में क्या कहा? फिर कहा बस। अगर आप देखेंगे इन दो आयतों में लिखा है कि लोगों ने अपने गुनाहों को मान करके यकदम बपतिस्मा लिया, मगर अगली आयत है मगर जब फरीसियों ने देखा तो फरीसियों और सदूकियों ने डर के मारे आकर बपतिस्मा लिया। मगर there were people who were repenting and crying and weeping, खुदा माफ कर दे, गलत आदमी है, हमने गलती की है। पर कुछ लोग जो थे मगर, तो आपको मगर वाले लोग नहीं होना चाहिए, आपको तौबा वाले लोग होना चाहिए। मगर वाले लोगों को मगरमच्छ खा जाएगा, लेकिन तौबा वाले लोगों को आसमान घर में दिखाई देगा। आपको पता होगा कि वो आदमी कहने लगा कि अगर से तो खुदा का बेटा है तो तू हमें भी बचा ले और अपने आप को भी बचा ले। अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें बचा ले और अपने आप को। आप मानो वो कौन था? ये वो चोर था जो सलीब पर खुदा यीशु मसीह के साथ लटका था। पर दूसरे चोर ने उसे छिड़क कर कहा शट अप, मेरे मुंजी को इस तरह की बातें कह रहा है और कहने लगा हमारी सजा तो वाजिबी है। उसने कहा हम अपने किए का ठीक ठीक बदला पा रहे हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हु एक्सेप्ट दैट आवर पनिशमेंट इज राइट। वी justly are being punished. Very few people accept it. पर इस चोर ने कहा हमारी सजा तो वाजिबी है। अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई तनातनी है और परेशानी है, बीमारी है, क्या आप खड़े होकर कह सकते हैं Yes Lord, I can understand. I've been a bad man, I've been a bad husband, I've been a bad papa, I've been a bad brother, I've been a bad man. खुदा बाप मुझे माफ कर दे, I've been a bad servant of God. I know you are punishing me and you're right. Instead of blaming God, ये आदमी कह रहा है हमारी सजा तो वाजिबी है। चोरी करी है सारी जिंदगी, ज़िनाकारी करी है, लोगों के घर लूटे हैं, बड़ा गंदा आदमी है, लेकिन आज आसमान के खुदा को आबिल मुकाबिल देख करके इसने अपने गुनाहों का इकरार करके कह दिया हमारी सजा तो वाजिबी है। और कहने का पर इसने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी सजा तो वाजिबी है पर इसने कोई गुनाह नहीं किया। आज क्या कोई कहेगा कि हम अपने किए का ठीक ठीक बदला पा रहे हैं? और तब उसने खुदा यीशु मसीह की तरफ देख कर कहा कि खुदावंद नाउ आई डिजायर टू गो in your kingdom. I want to go in your kingdom. Lord, please help me. I am helpless. I am not going to curse you and I don't want great things to shower in my house. I just want you to forgive me. I want to see your heaven. जब आप अपने कसूरों को मान लेते हैं तो आसमान का खुदा अपनी जुबान से आपके लिए मुबारक अल्फाज कहता है। उसने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ
कोई आदमी चोर को अपने साथ रखेगा? पता चल जाए चोरी में पकड़ा गया, अपने साथ रखेगा? पर आसमान का खुदा कहता तू मेरे हैंड इन हैंड। एक आदमी जरा से बुरा हो तो कहते भैया मेरे साथ ना चलो यार, मेरे साथ चलो तो मेरा भी नाम बदनाम हो जाएगा, मेरे घर में तो आएगा यार मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, यार मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। और अगर गिरजे में लोग बैठ दूसरी जगह बैठ जाते हैं, यार इसके साथ नहीं बैठूंगा। Nobody wants to sit with you, but God of heaven, He is so merciful because you have repented, because you have said I am justly being punished. He wants to take you to heaven. He says, verily, verily, I say to you, today you will be with me. Wow! How come God is giving us a place next to Him? आसमान का खुदा जमीन के इंसान को जो गुनहगार है अपने बगल में जगह दे रहा है और उससे कह रहा आज ही तू मेरे साथ। आप खुदा के साथ हो सकते हैं। आपके हालात जो बिगड़ चुके हैं, खानदान बर्बाद हो चुका है, कोई आपके साथ बैठना नहीं मांगता है, कोई आपसे बात नहीं करना मांगता, अगर आप इशारा करते हैं तो कोई रुकता नहीं है, कोई आपको गाड़ी में बिठाना नहीं मांगता, कोई आपसे फोन नहीं करता, लेकिन आप अगर इकरार करेंगे, तौबा करेंगे, मान लेंगे, अपनी खताओं का इकरार करेंगे, तो आसमान का खुदा फजल का दरवाजा खोल देगा और अपनी बगल बिठाएगा, एंड यू विल बी नोन एज द मैन ऑफ गॉड। I tell you, there are many men of God today, but these men of God are not so pure and holy. They have not been born pure and holy. But these people who have walked their life in sin, one day they repented and accepted the Lord as personal Savior, and that's why they are sitting here right in this hall, glorifying and magnifying the Lord and serving the Lord. Right, Suresh bhai? Have you been a very right person from the very beginning? Not done anything wrong? It's the grace of God that you're sitting here and doing. I am saying for you because I know you. डेविड साहब के बारे में कहते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, अभी इनसे ज्यादा रिलेशनशिप बनी नहीं है, बन जाएगी बाद में, कहा करेंगे इनके बारे में भी, लेकिन एक बात है, you are standing here in the house of God, sitting here in the house of God, it's because grace of God. How did the door of mercy open for you that you are a pastor today? Why? Because one day you accepted the Lord as personal Savior and you said, God, help me, forgive me. If there's anybody whose family is ailing, you are troubled, your life is troubled, your family life is troubled, nobody wants to sit with you, you want the door of heaven to open for you. It is ready to be opened. It is a door that automatically opens when God's people repent and say, I'm sorry. जितनी आज तक हटीलापन, कटीलापन, गंदी तबीयत, गुस्सा, नामान जैसी नहीं उतरेंगे, रफ में बैठे रहेंगे, ये ना भाषा की चिट्ठी सोना लाया हूँ, इस तरह की हरकत से आप बाज आ जाइए और कहिए खुदा मुझे माफ कर, मैं गंदा हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं गंदी बातें कहता हूँ, I am basing on my education, I am basing on my money, my possession, what I can do, I'm basing upon that, and I shouldn't. I want your door to be open for me. God's door will open for you. Nevertheless, let me go and tell you, Jesus Christ was on the face of this earth. यीशु मसीह दुनिया में थे और वो कहने लगे कि जो कोई देखता है वो अंधा हो जाएगा। मैं इसलिए आया हूं कि जो कोई देखता है वो अंधा हो जाएगा, जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। मालूम है क्या हुआ? लोग कहने लगे तो क्या हम अंधे हैं? यीशु मसीह ने कहा अगर अंधे होते तो देखने लगते, क्योंकि तुम नहीं मानते हो कि तुम अंधे हो, इसलिए तुम आज तक अंधे हो और अंधे ही रहोगे और तुम अपने गुनाह में मरोगे। पर अगर तुम मान, ये फरीसी लोग थे, हर तरह की गंदगी इनके अंदर थी, ये एक दूसरे से चिढ़ते थे पर मानने को तैयार नहीं थे कि हम अंधे हैं। आज भी दुनिया में बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं कि हम अंधे हैं, अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं है। दो बहनों में झंझट बहुत सालों से इसीलिए है कि अपनी गलती मानने को कोई तैयार नहीं है, दोनों लड़ रहे हैं और दोनों दलीलें देते हैं, रात के 3 बजे तक बातें होती हैं, 20 लोगों का आपने खींच लिया है, फूफी आप बताइए, फूफा आप बताइए, ताऊ आप बताइए, दीदी आप बताइए किसकी गलती है। इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को खुदा के कला के आईने में देखो और कह दो मुझसे खता हूं, आई एम सॉरी लॉर्ड, God will forgive you and give you a new life. God is about to change the whole personality of yours. जब खुदा बाप उस नामान की जिंदगी को उतार करके रथ से गोते लगवा करके पाप को साफ कर सकता है, आपकी जिंदगी को भी अपना मुंह बंद न कीजिए। उसका मुंह बंद हो गया, यह गलत बात थी। उसने कहा अगर तुम अंधे होते तो देखने लगते, पर चूंकि तुम कहते हो कि तुम देखते हो तुम्हारा गुनाह काम है। एक बच्चे ने जब कीचड़ में लथपथ था तो होश में आकर पहली बात कही, क्या कहा? होश में आकर, जब कभी आप होश में आते हैं तो पहली बात क्या करते हैं? होश में आकर बहुत सी बातें करते हैं, भाई खाना खाएंगे, भाई कपड़ा पहनेंगे। होश में आकर उसने पहली बात कही, मेरे बाप के कितने मजदूरों को रोटी इफरात से मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। My situation, my prayer is that every individual one day realizes that I was out of myself.
I was insane. I was blind. I couldn't see. होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने मजदूरों को रोटी फराज से मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो उसने कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, बाप मैंने आसमान का की खता की है, गुनाह किया है और तेरा गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहता हूँ। I have sinned against God of heaven and I have sinned against you and I am not worthy to be called your son. Keep me as one of your hired servant. This man realized, you know what happened? The door of mercy opened wide. Father embraced him, hugged him and kissed him many times. You want to be kissed by father many times? You are not worthy to be kissed? Don't worry. You think you are so very bad person, but let me tell you, बाप, आसमान का बाप, आसमान का खुदा आपको अपने आगोश में लपेट लेगा और आपको बहुत चूमेगा। ये भूल जाएगा कि आप सुरों को चलाते और आपका मुंह गंदा और आपके कपड़े फटे हैं, उनसे बदबू आ रही, और आपको पहलू से पकड़ गिर कर लेगा। उसने उसको बहुत चूमा और पहलू से पकड़ गिर कर लिया और कहा, जाओ अच्छे से अच्छा जामा, bring the best garment for my son. Why are you doing this? नौकर कहने लगे, why are you doing this? तुम इतना ये तो सब लेके चला गया था, मालिक तुम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि इसने तौबा कर लिया है, इसने मान लिया है कि इसने गलती करी थी, ये टूट गया है और आज अच्छे से अच्छा जामा इसे पहनाओ। और कहा, न सिर्फ इतना बल्कि इसके पाँव में जूती पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, ताकि अपनी अंगूठी से मेरे नविश्ते पर दस्तखत कर सके। उस जमाने में अंगूठी दी जाती थी लड़के को, ताकि जब कोई तहरीर लिखी जाए तो अंगूठी से उसकी मोहर हो। अंगूठी नहीं थी, ब्लेड डाली थी। Many of us have lost the possession. Many of us have lost the authority that God once gave to you. अब दुआ करने में आपको मजा नहीं आता, दुआ करने का दिल नहीं चाहता, खुदा से मांगने का दिल नहीं चाहता, बाइबल पढ़ने का दिल नहीं चाहता, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। You have lost the authority, but the moment you repent, the authority is given back to you. You again have the same authority. You again become something very important in the church, and God starts using you. Repent. अपने खताओं को मान लो। और तब लिखा हुआ है, उसने कहा न सिर्फ इतना बल्कि जाओ खाना तैयार करो, हम शहनाई बजाएंगे, हम बाजे बजाएंगे, हम नाचेंगे। ये मेरा बेटा मर गया था, जिंदा हो गया है। कैसे मरा हुआ आदमी जिंदा होता है? मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा होता है? मरा हुआ आदमी तौबा से जिंदा होता है, मरा हुआ आदमी मान लेने से जिंदा होता है। आपका खानदान मरा हुआ, इधर आदमी मरा पड़ा है, इधर बीवी मरी पड़ी है, उठते हैं अपनी नौकरी पे चले जाते हैं, मरी आ गई, मरा आ गया, उधर मरा बैठा है, इधर मरी बैठी है। मरे और मरी का घर कभी कभी बहुत बड़ा होता है। मरी बुआ और मरे भैया कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ी में चलते हैं, इनके पास बड़ा पैसा होता है, ऐसी बात नहीं, हमेशा गरीब नहीं होते। पर ये मिस्टर मरे और मिसिस मरी, इनका खानदान चौपट है। तो मैं नहीं मानूंगा, कोई मानेगी तो यही मानेगी, इससे घर तबाह हो जाएगा। जब मैंने कहा कि मेरा पाँव फिसल चला तो तेरी शफकत ने मुझे थाम लिया। इसका लिखने वाला दाऊद है और दाऊद कह रहा, one day I had to accept before God. I'm sorry God, I should not have done it. And you know, आप घर जाकर पढ़िएगा, उस आयत में दोनों बात लिखी है। उस आयत में उसने कहा तूने खता की है, दाऊद ने कहा मुझे माफ कर। उसी आयत में लिखा है नाथन नबी ने कहा तू मरेगा नहीं। उसी आयत में, आयत दूसरी नहीं, उसी आयत में नाथन नबी, you will not die because God's grace, the door of God's grace, the door of God's mercy is going to be wide open for you. Folks, I've got news for you. It's a very good news. मैं आपके लिए खबर लाया, बहुत अच्छी खबर है कि आसमान का खुदा आपके लिए दरवाजा खुला मांगता है। You will start enjoying your life. The food that you eat, the same very food will be very tasty. The same house will become heaven that is hell, and same people in your house that you hate, you start loving, and around you, you will like every place and every bit of it. I have been a man of God 45 years and I've enjoyed every bit of it. और जगह जगह जाता हूँ, तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ। God's people are wonderful. Serving God is wonderful. It's so good to be a man of God, and I am so thrilled to let you know, if you want to see the door of mercy wide open, अगर चाहते हैं फजल का दरवाजा और अनुग्रह का दरवाजा खुल जाए, तो आप एक काम कीजिए, तौबा कर लीजिए, माफी मांग लीजिए। सुनिए क्या लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का एक आदमी आया और वो आदमी से खुदावंद यीशु मसीह कहने लगा, जब वो कहने लगा हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए क्या करूं, तो उसने कहा ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। उसने कहा तो मैं बचपन से करता चला आया हूं। तब उसने कहा तुझमें एक बात की कमी है, तुझमें एक बात की कमी है। तो क्या कहना चाहिए था? अगर तुमसे कोई कहे एक बात की कमी है, घर हमारा कैसा है? घर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा घर, तो बहुत अच्छा घर, आपका घर बहुत अच्छा है। एक चीज की कमी है, तो कम से कम पूछोगे तो भाई क्या कमी है?
اس نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی. معلوم اس نے کیا کہا؟ لکھا ہے وہ غمگین ہو کر گھر چلا گیا. نہیں چاہتا تھا کہ ہاں خدا یہ بات کی کمی تو بچپن سے ہے, بڑا لالچی آدمی ہوں, ایک ایک روپیہ دے کے لالچ آتی ہے. میں نے اپنے بھائی کا چھین لیا, میں نے اپنی بہن کا چھین لیا, میں نے اس کی جائیداد ہڑپ لی, تھوڑا پیسہ دیکھتا ہوں لالچ آیا تھا میرے راج میں لگتا پیسہ دیکھ کر کے. یہ میری کمی بچپن سے, خدا باپ مجھے بچا ہے کمی سے. اس نے جب کہا تمہیں ایک بات کی کمی ہے تو اس کو مان لینا چاہیے تھا. ہم سے بھی کہا جائے تمہیں ایک بات کی کمی ہے, ارے ہم لڑائی کمی ہو جاتا, آتا پائی کرنے لگیں گے. تو آدھی صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور جب آپ پلپٹ پہ کھڑے ہو تو ہماری طرف انگلی دکھاتے ہیں. ایک آدمی آیا میٹنگ کے بعد مجھ سے کہنے لگا آپ تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے. اور کیا تم سے تو کر رہے تھے, کیا پڑوس والے سے بات کر رہے تھے؟ بلایا تمہارے پاس نے تم سے بات کرنے کے لیے. اگر کسی کو لگ رہا ہوں میں آپ کی باتیں کر رہا ہوں, جی ہاں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اور میں زہر کی بوتل پہ شہد کا لیبل نہیں لگاتا. اور خدا کلام کے اندر کہا خدا کا کلام تلوار ہے, چھری ہوتی تو مکھن لگاتا, تلوار سے کوئی کبھی مکھن نہیں لگاتا. تلوار کا کام تو کاٹنا ہے. لکھا ہے خدا کلام تلوار ہے, تیز تلوار ہے جو بند گودے سے ہو کر گزر جاتی ہے. اور آج میری دعا یہ ہے کہ خدا کلام آپ کو کاٹے اور چھانٹے اور آپ کہیں اس آدمی کی طرح غمگین ہو کر گھر نہ چلے جائیں, ارے چھوڑو یار یہ تو لوگ کہتے ہی رہتے ہیں یہ باتوں کا, پر آپ کہیں اس سے کہنا چاہیے, اس کو کہنا چاہیے ہاں خدا باپ ایک کمی تو میرے پاس ہے, اس کمی کا علاج کر, مجھے ٹھیک کر دے, مجھے بچا دے, مجھے نئی زندگی دے. میں صرف ایک آیت پڑھواؤں گا, یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 21 آیت, یوحنا کی انجیل اس کی 6 باب کی 21 آیت, یوحنا کی انجیل 6 باب 21 آیت. اور اس سے پہلے یہ بتاؤں گا ملاکی کی کتاب میں اس کے 3 باب میں لکھا ہے تم مجھے تھکتے ہو. پڑھا ہے, اب سب سناٹا ہو گیا. ملاکی کی کتاب سے بالکل سناٹا ہو گیا. یہ پادری صاحب ہمارا پیسہ چھین رہے ہیں. ملاکی کی کتاب میں لکھا تم مجھے تھکتے ہو, اور آگے لکھا پھر کہتے ہو کہ ہم نے تجھے نہیں, تم مجھے تھکتے ہو پھر کہتے ہو کس بات پہ تمہیں ٹھگا. نہیں معلوم کیا مجھے ٹھگا ہے تو بتا, تم نے کہاں ٹھگا ہے پتا سب کو رہتا ہم ٹھگتے ہیں. اور سارے عیسائیوں کو معلوم ٹھگو عیسائی جو ٹھگو عیسائی ہیں. تم مجھے ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کس بات پہ ٹھگا, تو اس نے کہا دہیجی میں اور ہڈیے میں. چندہ مت کہیے گا بھائی صاحب نے کہا چندہ نہ کہنا, چندہ نہیں آتا یہاں, دہیجی اور ہدیہ آتا نذرانہ. تم مجھے ٹھگتے ہو, جب خدا نے کہا تم مجھے ٹھگتے ہو تو خدا کے لوگ کہیں گے ہم کس بات پہ ٹھگتے ہیں. بلکہ جب آپ سے کہا جائے تم تھکتے ہو تو کہنا خدا باپ ہاں ہم تھکتے ہیں. تو نے مجھے $10,000 دیے, مجھے $1,000 چیک لکھ کر چیک میں ڈال دینی چاہیے تھی, یہ تیرا تھا, اور تیرے پیسے کا میں غلط استعمال کر رہا ہوں. اپنے بچے کو دے رہا ہوں کہ جا کر کے کمپیوٹر خرید, اپنے بچے کو دے رہا ہوں گاڑی خرید, پیٹرول ڈال, یہ مزے کر کے آ, لاس ویگس میں جا, شاید $1 ملین کا تیرے ہاتھ لگ جائے. تیرے پیسے کو, یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے, خدا کا ہے. کیوں تم مجھے ٹھگتے ہو, وہ کہتے ہو میں نے کس بات پہ ٹھگا. ڈو یو آسک ویئر ایم آئی رانگ. جو آدمی یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے پیسے لے کر آیا تھا, ایسے تھیلی چھپائے ہوئے تھا, جب یسوع مسیح کا تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا تو وہ بھی کہہ رہا تھا کیا میں ہوں, سب پوچھے میں کیا میں ہوں, تو وہ بھی کہہ رہا تھا کیا میں. کہنا کیا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا ہاں میں ہوں, بجائے ہاں میں ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کیا میں ہوں. اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے, وہاں تک میں نہیں جانا چاہتا, غصہ ہو جائیں گے. پھر ہماری ملاقات بھی آپ سے نہیں ہوگی. یوحنا کی انجیل 6 باب اور 21 آیت پڑھیں گے. یہ آئسنگ آن دا کیک ہے, آئسنگ آن دا کیک, the 6th chapter of John's Gospel 21st verse. سنیے گا, پڑھیے سسٹر, زور سے پڑھیے گا. آج مائکروفون کوئی بات نہیں ہے, آج پڑھ دیجیے اس کے. تو وہ اسے ناؤ پر چڑھا لینے کے لیے تیار ہوئے. تب وہ اسے ایک آدمی مل گیا, بیچارے ناؤ کھیل رہے تھے, ناؤ ڈوبی جا رہی تھی, وہ سوچ رہے مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. جانے اس لگے ایک آدمی کھڑا ہوا, آدمی نے کہا مجھے چڑھا دو. سو وہ اسے ناؤ پر چڑھا لینے کے لیے تیار ہوئے. سنیے گا, اور ترنت وہ ناؤ اس स्थान پر جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے. کب؟ ترنت. It will not take even a second. The moment you accept Jesus Christ as your personal Savior and take Him in your boat, ترنت وہ وہاں پہنچ گئے جہاں جانا چاہتے تھے. کہاں جانا مانگتے ہیں آپ؟ کئی لوگ کئی جانا مانگتے ہیں,
हम चाहते हैं लड़की की शादी अच्छी हो जाए, हमारे लड़के की शादी अच्छी हो जाए, हमारे घर सब कुछ ठीक हो जाए, हमारा आदमी ठीक हो जाए, हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, हमारा घर ठीक हो जाए, हमें खुशी मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, हम इंजॉय कर सकें। और हम जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर वो थपेड़े पीछे फेंक दे रहे हैं। फिर हम आगे जाना चाहते हैं, फिर पीछे फेंक देते हैं। हम जाना चाहते हैं, इस आदमी को अपनी नाव पर ले लो तो जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाओगे। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो तेरी शफकत में खुदावन मुझे थाम लिया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कौन हैं? सवाल जवाब मत कीजिए, मुंह बंद मत कीजिए, हठीले मत बनिए, टर्न होकर नमाज की तरफ घर मत जाइए, तो रथ से उतर जाइए, माफी मांग लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। आइए दुआ मांगे, आइए दुआ मांगे। क्या आप आज कहना मांगते हैं? ये आप मेरी जिंदगी का जिक्र कर रहे थे ब्रदर टोनी, मैं नालायक हूँ, मैं खराब हूँ, मैं गंदा हूँ, मेरी सब कुछ बिगड़ चुका है, मैं तौबा कर रहा हूँ। आज मैं ऑल्टर को ओपन रखूंगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी बदल दे तो आप एक काम कीजिए, मान लीजिए और कहिए खुदावंद मुझे, मैं किश्ती पर तुझे चढ़ा लूंगा। आज मेरे लिए शफकत का दरवाजा खोल दीजिए। मैं चाहता हूँ कि वो सीढ़ी मुझे दिखाई दे। आज जो चाहते हैं कि खुदावंद उनकी जिंदगी में फजल करे तो आप एक काम कीजिए, अपनी जगह से उठकर सामने आ जाइए। मैं ब्रदर टोनी मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए शफकत का दरवाजा खुल जाए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जस्ट लीव योर प्लेस एंड कम फॉरवर्ड। यहां सामने आकर खड़े होइए, ये ऑल्टर आपके लिए खुला है। एंड आई वांट टू प्रे, आई वांट टू टच यू इन प्रेयर एंड आई वांट टू प्रे a special prayer for you so that your life totally transformed and changed। क्या आप इसको महसूस कर रहे हैं कि आप वो शख्स हैं? just come, just come, just come। Hallelujah, hallelujah, thank you। क्यों दूर खड़ा चिथड़े उड़े कोड़ों से बाल सजे कांटों से दाढ़ी नोची हाथों से आजा तू, क्यों दूर खड़ा आजा तू, क्यों दूर खड़ा उसका बदन बख्शीने उसका सुख उसी को दे तन और मन आजा तू, क्यों दूर खड़ा आजा तू, क्यों दूर खड़ा चिथड़े उड़े कोड़ों से
گزار ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سے باتیں کری ہیں۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ فضل کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رہے، ہم چاہتے ہیں خداوند ہم اپنے لبوں سے انگیکار کرتے رہیں، جماعت کو چھو خداوند، یہ لوگ جو سامنے آئے ان کو معاف کر، ایک عجیب و غریب تحریر کو ان کے خاندان بدل جائے ہیں، ان کی شخصی زندگیاں بدل جائے ہیں۔ Holy Spirit, do a great work. Brood upon them, Holy Spirit, brood upon them. Rest upon them, Holy Spirit, rest upon them. Touch them, Holy Spirit, touch them. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Relation be fixed in Jesus' name. Broken relation be fixed in Jesus' name. یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ جائیں، دل کی گہرائی سے خداوند، اور آج دعا کرتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھا کر خداوند ان میں سے ایک کی بیماری سے ان کو شفا دے، یسوع کے نام سے بیماریاں چھوڑ کے چلی جائیں، یسوع کے نام سے بیماریاں چھوڑ چلی جائیں، وہ بیماریاں جو انسان کی نگاہ میں بہت بڑی ہیں یسوع کے نام سے چھوڑ کے چلی جائیں right now. آمین 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 آمین. Thank you Jesus. خوشی